Today we will start a new unit, that is Unit 2 Safety, Chapter number 3 Safety and First Aid. Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground, or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. We should follow safety rules to avoid accidents. We all know that accidents can happen anytime, anywhere, and they don't give any warning. So we should always be careful and we should always follow safety rules. Most of the times, because of our carelessness only, accidents occur with us. So we should always follow safety rules and be safe. Safety at home. The first topic is slipping on the floor. To avoid slipping on the floor, we should follow these safety rules. Keep the floor dry. Floors of kitchen and bathroom should not be slippery. Never leave your toys on the floor or stairs because you may trip over them. So, to stay safe at home and avoid slipping on the floor, we should keep our floors dry, and the floors of our kitchen and bathroom should never be wet and they should not be slippery. Otherwise, we can slip over there. And the third important point is we should never leave our toys on the floor or on the stairs because we can trip over them and fall. सो हम लोगों को घर में सेफ़ रहने के लिए और फिसलने से बचने के लिए घर पे क्या करना चाहिए, हम लोग को फ्लोर हमेशा ड्राई रखना चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को किचन और बाथरूम का फ्लोर हमेशा ड्राई रखना चाहिए और उसे स्लिपरी नहीं होने देना चाहिए. उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए और हमें खेलते टाइम अपने टॉयज़ को कभी भी फ्लोर पे या फिर स्टेयर्स पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा पैर उस पर गिर सकता है और हम फिर गिर सकते हैं. Fire in the kitchen. To avoid fire in the kitchen, we should follow these safety rules. In case of gas leakage, open the doors and windows to let the gas out. Do not light matchsticks or turn on electric switches at the time of gas leakage. Do not pick up anything from a burning gas stove. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen. They catch fire easily. सो किचन में हमें सेफ़ रहने के लिए अगर कभी भी गैस लीकेज होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डोर्स और विंडोज़ ओपन कर देना है ताकि गैस जो है बाहर चले जाए. और उस टाइम पे हमें मैच स्टिक्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को यूज़ नहीं करना है और हमें फ्रिक्शन अवॉइड करना है. फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई भी एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर स्लाइड करती है तो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिससे कि आग लग सकती है. इसलिए हमें फ्रिक्शन अवॉइड करना है जब गैस लीकेज हो. सेकेंड पॉइंट है, हमें बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर से कभी कुछ नहीं उठाना चाहिए और किचन में रहते टाइम हमें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं. तो उससे क्या है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हम जल सकते हैं. इसलिए हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स अवॉइड करना चाहिए किचन में. Electric shocks. To avoid electric shocks, we should follow these safety rules. Do not touch any electrical appliances or switch with wet hands or barefoot. Do not go close to the heater or table fans when they are on. Turn off the switches before touching them. Do not touch a damaged wire. When someone gets an electric shock or you notice a spark, turn off the main switch immediately. सो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथ से या बिना कोई भी स्लिपर्स के नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या हमें शॉक लग सकता है. और हमें कोई भी हीटर्स को या फैंस को जब वो ऑन हो उन्हें नहीं छूना चाहिए, उनका स्विच ऑफ करके उन्हें छूना चाहिए. और कभी भी कोई वायर अगर डैमेज है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, उससे भी शॉक लग सकता है. और जब हम देखें कि कोई स्पार्क हो रहा है या फिर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो इमीडिएटली हमें जाके मेन स्विच ऑफ कर देना है. सो हियर आर सम डूज एंड डोंट्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स एट होम. द फर्स्ट वन इज़ नेवर यूज़ अ डैमेज्ड एक्सटेंशन कॉर्ड. अगर कोई भी डैमेज्ड वायर है तो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. अनप्लग द टोस्टर बिफोर ट्राइंग टू डिसलॉज द स्टक्स टोस्ट. टोस्टर यूज़ करते टाइम टोस्ट को निकालने से पहले हमें उसका स्विच को ऑफ कर देना चाहिए. टोस्टर के स्विच को ऑफ करके उसे निकालना चाहिए टोस्ट को. सो द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक्स एट होम continues here. The third one is
पुल ऑन द प्लग एंड नॉट द केबल टू अनप्लग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अनप्लग करने के लिए उसका केबल नहीं पुल करना चाहिए, उसका प्लग को पुल करके उसके निकालना चाहिए। बिफोर चेंजिंग अ लाइट बल्ब स्विच ऑफ द लाइट और अनप्लग द लैम्प। लैम्प को ऑफ करके हमें उसका लाइट बल्ब चेंज करना चाहिए। मेक श्योर टू लोकेट इलेक्ट्रिकल वायर्स बिफोर ड्रिलिंग अ होल इन द वॉल। कोई भी वॉल में होल करने से पहले उसका जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स है वो कहाँ कहाँ पे वो हमें देख लेना चाहिए। मल्टी आउटलेट्स गेट द राइट पावर बार्स। अगर हम कोई भी मल्टी आउटलेट जैसे कि कॉर्ड वगैरह यूज़ करें, उसमें भले ही 4 पॉइंट्स दिए हो, लेकिन हमें चारों को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करके। नहीं तो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है और वहाँ पे फिर कुछ शॉक वगैरह हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। ऑलवेज अनप्लग द आयरन बिफोर फिलिंग इट विथ वाटर। आयरन को अनप्लग करके उसमें पानी भर के उसे यूज़ करना चाहिए, ना कि जब वो ऑन हो। In the bathroom, never use electrical devices if you are wet or the humidity level is high. बाथरूम में हमें कभी भी अगर जैसे कि ड्रायर या स्ट्रेटनर कुछ भी यूज़ करना है तो हमें जब हम गीले हों और वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो तब यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो शॉक लग सकता है। डो नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एक्सटेंशन कॉर्ड्स नियर अ पूल। पूल में जब भी हम लोग स्विमिंग वगैरह कर रहे हो वहाँ पे पास में हमें कोई भी कॉर्ड वगैरह, एक्सटेंशन कॉर्ड या कुछ भी नहीं रखना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान नहीं रखना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन रिमूविंग द कवर प्लेट ऑफ अ स्विच और आउटलेट। कोई भी स्विच का आउटलेट जैसे कि जो कवर प्लेट होता है उसको निकालते टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई भी वायर इधर उधर होगा तो हमें शॉक लग सकता है। Poisoning. To avoid poisoning, we should follow these safety rules. Never take any medicines unless your parents or a doctor gives it to you. All poisonous chemicals like floor cleaners and detergents should be kept away from eatables. Do not eat stale, spoiled and exposed food. It causes food poisoning. सो हमें पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी दवाई जब तक हमारे पेरेंट्स या कोई सर्टिफाइड डॉक्टर हमें ना दे, हमें कोई भी दवाई खुद से नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि जो भी पॉइजनस केमिकल्स है जैसे कि फ्लोर क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स वगैरह, वो सब हमें जो खाने के सामान है उनसे दूर रखना चाहिए। और हमें क्या है, जो खुला हुआ खाना रखा हुआ है जो कि ख़राब हो गया है और पुराना बासी खाना, वो नहीं खाना चाहिए, उससे हमें क्या है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। So the topic safety at home is now completed. Now we will study safety in the playground. We should follow these safety rules in the playground. Do not push or hit each other while playing. Do not play rough games. Stay away from the swings when someone is using them. सो प्लेग्राउंड में हमें सेफ़ रहने के लिए कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या दोनों को चोट लग सकती है। और हमें कोई भी रफ़ गेम्स नहीं खेलना चाहिए जैसे कि मारना, किसी को धक्का देना, ऐसे सारे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। और जब कोई भी झूला यूज़ कर रहा हो, जब कोई झूला में बैठ के झूल रहा हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें क्या है लग सकता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, वी शुड नेवर पुश एनीवन एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स व्हेन समवन इज यूजिंग देम। Safety in school. We should follow these safety rules to avoid accidents in school. Do not push each other, especially on the stairs. Do not jump on the benches. Do not throw things in the classroom. सो स्कूल में हमें सेफ़ रहने के लिए कभी एक दूसरे को धक्का वगैरह नहीं देना चाहिए, और स्पेशली तब जब हम किसी सीढ़ी वगैरह के पास हो। और हमें बेंच के ऊपर खड़े होके जंप नहीं करना चाहिए, नहीं तो गिर सकते हैं और हमें लग सकता है। और हमें जब स्कूल में हो कोई भी सामान को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, किसी और को चोट लग सकती है। एंड एज यू कैन सी इन द इमेजेस, वी शुड नॉट पुश anyone while we are on the stairs, and we should not stand on the desk, otherwise we can fall. एंड द थर्ड वन इज़ डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासेस। क्लासेस में हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है हमारा पैर कभी बेंच या डेस्क से फंस सकता है और हम गिर सकते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड. केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडेस्ट्रियंस causes accidents on the road. We should follow these safety rules on the road. Always walk on the footpath. Always use zebra crossing to cross the road. When there is no zebra crossing, look first to your right, then left, and then to your right again. When no vehicle is coming, then cross the road. Never cross the road behind a parked vehicle. Always follow the traffic lights. Never run or play on the road.
रोड में हमें सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और हमें जब भी रोड क्रॉस करना हो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ पे हमें ध्यान से पहले लेफ़्ट में देखना चाहिए, फिर राइट में देखना चाहिए, फिर वापस लेफ़्ट में ध्यान से देखना चाहिए। और जब कोई भी गाड़ी ना आ रहा हो तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और हमें कभी भी रोड क्रॉस वहाँ से नहीं करना चाहिए जहाँ पे कोई एक गाड़ी खड़ा हो। क्या है, वो गाड़ी कभी भी ऑन हो सकता है और कभी अगर पीछे आ गया तो हमें चोट लग सकती है। और हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए एंड हमें कभी भी रोड के आसपास या रोड में दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। So here are some more pictures on safety on the road. So we should always use a footpath. We should always use a zebra crossing to cross the road. Look at the traffic lights before crossing the road. Red signals cars to stop and green to go and yellow is to wait. So we should always follow the traffic lights. We should not play on the road and we should never run on the road. So the first part of this chapter is now completed, that is safety. Now we will start the second part, that is first aid. The immediate help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. Different types of injuries need different types of first aid. The injured person should be taken to the doctor after giving first aid. फर्स्ट एड क्या होता है, जब भी कभी हमें अचानक से लग जाता है, डॉक्टर के आने से पहले जो थोड़ा सा हेल्प हमें दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे कि कट जाने से जो हम थोड़ा सा साफ़ करके पानी से बैंडेड लगा लेते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के जो इंजरीज़ होते हैं उसके लिए डिफरेंट फर्स्ट एड यूज़ होता है और इंजर्ड पर्सन को हमेशा फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फर्स्ट एड टिप्स। First aid tips for cuts and wounds. Wash your hands thoroughly before giving first aid to an injured person. For a deep cut, first remove the dirt from the wound, then clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. Tie a bandage around it to stop bleeding. Put a band-aid for a minor cut. सो फर्स्ट एड क्या है कट्स और वुंड्स के लिए। जैसे छोटा सा कोई कट अगर लग जाता है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए, नहीं तो क्या है उस इंजर्ड पर्सन को इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर डीप कट लगा है तो सबसे पहले हमें उस इन्फेक्टेड एरिया को साफ़ करना चाहिए। वहाँ पे कोई डर्ट वगैरह है तो उसे एक एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ करना चाहिए, जैसे कि हम सेवलॉन लिक्विड यूज़ करते हैं या तो डेटॉल यूज़ करते हैं। उस सब से साफ़ करके फिर एक क्लीन बैंडेज उसके अराउंड लगा देना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। और अगर छोटा सा कट है उसके लिए हम एक बैंडेड यूज़ कर सकते हैं। First aid tips for minor burns. Keep the burnt area under running cold water. Put an ice pack on the burnt area for few minutes. Apply antiseptic cream on the burnt part. जब छोटा मोटा जल जाए तो उसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उस अफेक्टेड एरिया को हमें रनिंग कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए, जैसे कि टैप के नीचे, या तो फिर हम फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के उसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें आइस पैक उस अफेक्टेड एरिया में लगाना चाहिए और उसके थोड़ी देर बाद हमें एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना चाहिए। नाउ द फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट। पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया. Put ice cubes over the affected area. And third one is apply calamine lotion in case of itching. अगर कभी हमें कोई भी छोटा मोटा कीड़ा वगैरह काट दे तो उसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए। पहले तो बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का एक पेस्ट बना के उस अफेक्टेड एरिया में लगा लेना चाहिए। फिर छोटा सा आइस क्यूब लेके उस अफेक्टेड एरिया में थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर इचिंग वगैरह हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो उस केस में हमें कैलामाइन लोशन यूज़ करना चाहिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स, फर्स्टली यू कैन वॉश योर affected area with soap and cold water. Then you can use some ice on the affected area, and lastly you can use any antiseptic cream to prevent itching. First aid tips if a person faints. When a person faints, make him or her lie down with the head at a level lower than the body. It allows rapid blood circulation towards the brain. Allow fresh air around the person. Sprinkle cold water on his face
and loosen his clothes. जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसके सर को हमें नीचे रखना चाहिए, उसके बॉडी के लेवल से थोड़ा नीचे रखना चाहिए. यू कैन रेफर टू द इमेज गिवन. एंड देन उसके बाद हमें उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ होता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है. उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस इंसान को थोड़ा फ्रेश एयर प्रोवाइड करना चाहिए और फिर उसके फेस पे ठंडा पानी डालना चाहिए और उसके क्लोथ्स को थोड़ा लूज़ करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा फ्री फील करे. First aid tips for nose bleeding. In case of nose bleeding, pinch the nose for 7 to 8 minutes and lean slightly forward till the bleeding stops. Put a cold wet towel on the face. The mouth should be open so that the person can breathe through the mouth. जब किसी का नोज़ ब्लीड करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नोज़ को पहले से बंद करके सामने थोड़ा सा झुक जाना चाहिए. उससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्लीडिंग जो है रुकेगा. उसके बाद हमें फेस पे एक वेट टॉवेल, ठंडा टॉवेल रखना चाहिए मुंह पे और फिर माउथ को थोड़ा ओपन रखना चाहिए ताकि वो इंसान जो क्या है वो ब्रीथ कर सके. एंड फॉर द स्टेप्स यू कैन फॉलो द इमेज. First aid box. We all must have a first aid box in our home and school. The first aid box should contain an antiseptic lotion, something that prevents infection, antiseptic cream, cotton pads, a pair of scissors, band-aids, crepe bandage and some painkiller tablets. हम सबके घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि जो भी इम्पॉर्टेंट सामान है फ़र्स्ट एड बॉक्स के वो सारे चीज़ होने चाहिए, जैसे कि एक एंटीसेप्टिक लोशन, एक एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन पैड्स, एक कैंची, छोटे बैंडेड और क्रीप बैंडेजेस और कुछ पेन किलर टैबलेट्स. जैसे कि कुछ भी इमरजेंसी हो, इन केस कोई भी एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, घर में कोई भी इमरजेंसी हो या स्कूल में किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए क्या है, हम वो फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और जो इमीडिएट हेल्प है वो हम दे सकते हैं किसी को भी.